मेरा ख्याल है दवाई च कोई मच्छर पै गया है। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪੰਘੂੜਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕੈਮੀਕਲ ਪੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा तजर्बा कामयाब हो गया, उसकी खुशी च नचन डे ने। ओ माय गॉड! ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਡਾਂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ 10,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। बेटा फजूल तबसरे मत करो, आप भी हमारे साथ मिलके डांस करो। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਹੇ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਹੇ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਹੇ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬਣ। ਨਚਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। बेटे ये याद रखो कि साइंसदान अगर डांस कर रहा है तो उसके पीछे कोई तहकीक जुड़ी हुई है। और हकीकत भी यही है कि अगर काम करते हुए उठ के 5 मिनट के लिए डांस कर लिया जाए तो ये आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा करता है। वाह! ਉਹ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਚਾਣ ਡਏ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਖਲੀਕੀ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੁਮਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ? बेटा तहकीक ने ये बात साबित करती है कि डांस ना सिर्फ तवज्जो और यकसुई में इजाफा करता है जी। बल्कि दीगर सलाहियतों को भी उजागर करने की वजह बनता है। अच्छा। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕੋ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਇਹਦੀ। बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ मेरा बेटा बैठ जाओ। शाबाश, ये इसमें बड़ी सलाहियत है कि ये तार पे भी वैसे ही बैठ जाता है जैसे स्टूल पे बैठता है। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੌਸ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਤੇ ਮਤਹਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। बिल्कुल तवज्जो के लिए जरूरी है बेटा कि बॉस भी 5 मिनट के लिए उठ के मातहतों के साथ सपोर्टिंग डांसर के तौर पे शामिल हो जाए। लो जी, मेरे को लिखवा लो। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਗੋਗੇ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। नहीं बेटा तेरे को की लिखवा लीए, तेरी केड़ी जायदाद है जेड़ी तेरे को लिखवा लीए, या तू बैनर लिखना तेरे को लिखवा लवीए। ओए 8 जमाता तू पढ़िया नहीं होया, तेरे को की लिखवा लीए। ओए मैं गल पूरी करके छड़ांगा, मेरे को लिखवा लो। ये तहकीक या किसी माइकल जैक्सन के बहुत बड़े फैन ने की है या तहकीकी टीम दे विच पप्पू सम्राट शामिल है? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। बिल्कुल नहीं, मैं एडे लम्बे डांस वास्ते ते कह ही नहीं रहा। 5 मिनट बाद अगर किसी ने एक स्टेप भी किया तो मैं उहदियां लत्तां ते केमिकल रोड़ देना है। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟਦਾ। ओ बेटे ये तहकीक है, जैसे 20 साल से जारी एक तहकीक का नतीजा ये निकला है जी। कि ये जो वीडियो गेम्स होती हैं ये याददाश्त को बेहतर बनाती हैं। अच्छा। लिहाजा आज छुट्टी के बाद घर जाते हुए रास्ते में से अपने अपने बुजुर्गों के लिए एक वीडियो गेम जरूर लेके जाना। क्योंकि बुजुर्ग अक्सर अपनी औलाद को देख के कह रहे होते हैं ये किन्ना दा मुंडा है। फिर औलाद बेचारी नूं क्लीयर करना पैंदा है, अब्बा जी मैं तुहाडा ही हां। इस गल्लों अपने अपने बुजुर्गां वास्ते वीडियो गेम जरूर खरीदो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖਿਡਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਡਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦਾ। वैसे गौरी साहब मैं माफी चाहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੋਗੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ यादे माजी अजाब है या रब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤਹਿਕੀਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। याददाश्त के हवाले से बेटे एक और दिलचस्प तहकीक सुने जी। लोग अपने माजी को खुद को तहफ्फुज देने वाले अंदाज में गलत याद करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको सादा ये दे देता हूं, जैसे फर्ज करो गोगे ने अकेले वो सारा खाना खा लिया जो तुम सब के लिए था, तो गोगे का दिमाग कुछ अरसे बाद इस याददाश्त को यूं महफूज करेगा कि मैंने तो उस दिन पेट भर के खाना ही नहीं था खाया। यानी वो याददाश्त जिसमें मुद्दा खुद पर पड़ रहा हो या उस याददाश्त से कोई नाकामी जुड़ी हो तो जहन उसे ऑटोमेटिकली धुंधला कर देता है। इसका मतलब है कि आपके असिस्टेंट के ज़हन में ये बात भी धुंधली हो चुकी होगी कि बचपन में इसको कीड़ियां अगवा करके ले जाती थी। उस्ताद जी वैसे की फजूल तहकीकां लेके आए हो आज? अब यो वांडो के दानिश्वर, ये जिस तहकीक को तुम फजूल कह रहे हो, मुहक्किकीन ने उम्रें लगाई हैं ऐसी तहकीक करने के लिए। ये देखो तहकीक, सिनेमा जाकर फिल्म देखने से जिस्म को जवान रखने में मदद मिल सकती है। यस, सकाफती सरगर्मियां जिस्मानी बुढ़ापे की रफ्तार को सुस्त कर देती हैं, इसलिए हफ्ते में एक आध दिन फिल्म देखने जरूर जाया करो, बल्कि हो सके तो साथ अपने उस्ताद की भी एक टिकट लेके आया करो। मैं ते एवें मजाक नाल उस्ताद जी कहा, तुसी अपनी टिकट पक्की करन डे हो। एक नहीं 2 टिकटें लानी पड़ेंगी, मैं भी साथ हूँ। ओ वायरस बेटे, तुम क्यों अपना अलहदा रट्टा डाल रहे हो? तुम्हें टिकट की जरूरत ही नहीं है, और मैं तेन जेब च पा के ले जाना है। मैं सीट ते बैठ के वेंदा रवांगा, तेनू मैं गुट ते बा लवांगा। वाह ਬਾਤ ਹੈ। ਸੈਂਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਥਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਓ ਯਾਰ ਲੱਕੜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਚੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਗੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੱਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹਨਾ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੌ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ? ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ? खुद दस दे मेरा बेटा, मेरे किस काम नाल तेनू फायदा हो सकता है? दस मेरा पुत्र अज। ਵੈਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੁਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। सिर्फ घोड़ियां नू नहीं, खोतियां नू ही ला लेना। आओ इधर। ਤਹਿਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਲੱਤ ਮੇਰੇ ਅੰਗਰ ਕਰ। यार वैसे तुहानू की तकलीफ की हो? मैनू ये तो दसो जरा, की तकलीफ है तुहानू? ਚਾਚਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਯੂ ਟਰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। अंकल प्लीज प्लीज आप तशरीफ रखें। कुड़िए मैनू अंकल ना कही, नहीं तो मैं सीधा खलो जाना ही। हद हो गई है। इन्हां बच्चियां नू देखो, एक ते आके इन्नी दूरों साइंस दियां तहकीकात दसना वा, पर ये उत्तों मेरी जान ही नहीं छड्डदे। सॉरी सर, सॉरी। जितनी देर से मैं आप लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूं, अब तक तो आपको बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। ਵੈਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। हेलो, मुझे जुगते पसंद नहीं है, ना मैं जुगत करता हूँ और ना ही सुनता हूँ। छड़ दे बेटे, तू नहीं ना करदा, वो ते करदे ने ना।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਈ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨਿਗਾਰ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। सर प्लीज आप अपनी बात जारी रखें, हम आपसे बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। जी ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਪਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਬਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪਟਾਰੀ ਚ ਵਾੜ, ਮੈਂ ਬੀਨ ਵਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਜਾਂ ਪਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਬਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੱਖੀ ਚ ਕੁੱਤ ਕਤਾਰੀਆਂ ਕੱਢਾਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਲਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ 6 ਨਾਨ ਤੇ 250 ਦੇ ਛੋਲੇ ਲਿਆ ਦੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बेटा इतना खर्चा किया भी तो इसने थोड़ी देर के लिए खुश होना है, क्योंकि एक तहकीक बताती है कि इंसान मुस्तकिल खुश नहीं रहता, ना मुस्तकिल खुश रहता है और ना ही मुस्तकिल गमगीन होता है। हाय उसकी खुशी और गमी चंद दिन या चंद हफ्ते या महीने या साल भर के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। अच्छा इसे हेडोनिक एडॉप्टेशन कहते हैं। आसान लफ्जों में मैं आपको समझाता हूं कि इंसानी दिमाग हर नई चीज का बहुत जल्दी आदी हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीज उसके लिए नई और अनोखी नहीं रहती, और वक्त गुजरने के साथ इन चीजों से मिलने वाली खुशी का एहसास और मजा कम हो जाता है। इसी तरह इंसान किसी दुख या तकलीफ को भी मुस्तकिल एक ही शिद्दत से महसूस नहीं करता, सही बल्कि वक्त के साथ साथ गम का एहसास भी कम हो जाता है। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੋਗੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਗੋਗਾ। ਪਰ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। चलो फिक्र ना करो, जितन फड़िया जाएगा फिर दुखी हो जाएगा। अच्छा, ये जो दुख और खुशी भूल जाने वाली तहकीक है, जी इस तहकीक के लिए माहिरीन ने 2 तरह के लोगों पर रिसर्च की। अच्छा एक ग्रुप के लोगों को लॉटरी जीतने, गाड़ी खरीदने और सैरो तफरी के मौके दिए गए, जी जी जबकि दूसरे ग्रुप में फालज के मुतासरीन, एक्सीडेंट में जख्मी होने वाले और कारोबार में नुकसान उठाने वाले लोग थे। इस तहकीक के मुताबिक दोनों ग्रुपों के लोग अपनी खुशी या दुख का एहसास ज्यादा देर तक कायम नहीं रख पाए। अच्छा ये तहकीक 3 मरहलों में मुकम्मल की गई, जिसमें 1 महीने, 1 साल और 5 साल के नफ्सियाती मुआयनों में उन लोगों की दिमागी कैफियत के टेस्ट लिए गए। सही फिर रिजल्ट से पता चला कि उनकी खुशी और गम के जज्बात तीनों बार पहले से मुख्तलिफ थे। ਚਾਚਿਓ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। यार वैसे मैं माफी चाहना वा, हद हो गई है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਜ ਗਲੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਬਤਖ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ बेटा तू ना हंसे ना तो ये ना एडे शोखे हो। सर आप बैठे, तशरीफ रखें। ये तो मज़ाहिया लोग हैं। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮਨੂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਟਹਿਣ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੇ। ਉਤੋਂ ਟਾਣ ਵੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੁਗਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂ, ਉਰਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂ ਕਰਾਂ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਸ਼ਾਜ਼ੋ, ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ। आप इनको छोड़े अंकल, आप अपनी बात करें। ਲੋ ਫੇਰ ਅੰਕਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ? ਵੈਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ। ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਅੰਕਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ। ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ मैंने कोई धूप में बाल सफेद नहीं किए। मेरा देखो, मैं सारी जिंदगी हैड पा के रखे है, धुप लगन नहीं दी, अज भी मेरे वाल काले ने। बेटा ये तू हैड नहीं ना सारी जिंदगी लाया, ते धुप ने वालों की बजाय तेरे मुंह ते गुस्सा कट देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। बेटा बाल सफेद होने पर भी साइंसदानों ने तहकीक की है। एक तो विटामिन B12 की कमी से बाल सफेद होते हैं, अच्छा, इसका खास ख्याल रखा करो। इसके बाद टेंशन और तंबाकू नोशी से भी बाल सफेद होते हैं। यस, आपने अक्सर महल्लों में देखा होगा, थड़े पे बंदे बैठ के सूटे लगा रहे होते हैं, उनकी शक्ल 45 साल की होती है और बाल 80 साल के होते हैं, क्योंकि सूटे 80 साल के बाबे वाले खिंचन रहे होते हैं। ऐसे तो नहीं ना ये डब्बियों के ऊपर लिखा होता तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजिर है। अच्छा जी, इस बारे साइंस की कहती है? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ 80 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮਛੇਰੇ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾਟਾ ਹੈ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਜੁਗਤ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਮਛੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। चले जाने थे अंकल, आप तशरीफ रखें। लो, एक तो ये बच्ची अज अंकल लैके मेरे मगर पई। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? बिट्टी सिगरेट सिर्फ वाल चिट्टे करदा है, दोबारा काले नहीं करदा। तू बेफिक्र हो जा बेटा, ये उस वालों की गल हो रही है जेडे सिर चों निकले होण, जेडे सिर दे उत्ते रखे होण, उन्होंने सत्ते खैरा ने। तू बेटे सिगरेट जिन्ने मर्जी पी, बस तू हनेरी कोलों बचना है। ਆ ਹਨੇਰੀ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸੀ। क्यों जी? ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਵੇ ਗੁੱਡ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਉਠਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੱਟਿਆ, 2-3 ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। चलो 2-3 डांगा दी ते खैर, वो तो तेनों घर भी 2-3 डांगा मार के ही उठाते ने। ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਮਸਾ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਜਰਾ ਰੱਖੇ ਐ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਡੰਗਰ ਹੋਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਡੰਗਰ ਉਂਝ ਹੀ ਡਰਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈ। बस मेरे घर वालियां तो नहीं तंग, मालक मकान तो तंग है, क्योंकि किराया ही देंदा नहीं होना, मालक मकान रोज बूए के आ जांदा होने। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। बहरहाल बेटा, तय ये पाया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी सफेद ना हो, तो एक तो आपने टेंशन नहीं लेनी, दूसरा आपने तंबाकू नोशी से दूर रहना है, क्योंकि तंबाकू नोशी से भी बाल सफेद होते हैं। जी, तीसरे नंबर पे आपने विटामिन B12 की कमी नहीं होने देनी। सही। ਵੈਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸਫੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। शुक्र है भाई, मैं सिगरेट नोशी पहले ही नहीं करता, अब मैं विटामिन D का भी ख्याल रखूंगा। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 17 ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ। 70 का?
ओ भाई मैंने तो अभी 50 क्रॉस नहीं की। ओह एक्सक्यूज मी, उम्र का भी नई तहकीक में पता चल गया है। इंसान की ज्यादा से ज्यादा उम्र 194 साल हो सकती है। जी हाँ, जनरल नेचर में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक हम बुढ़ापे के राज को जान भी लें तो हम हमेशा जिंदा नहीं रह सकते। अलबत्ता 194 साल तक इंसान जी सकता है। अच्छा, और इस हिसाब से मैं बबांगे दोहल कह सकता हूं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। लो जे ये गल है तो फिर मैनू अज फीडर खरीदना चाहिए। ते मेरे ते दूध दे दंद भी नहीं निकले। मैं तो फिर हले पैदा ही नहीं होया। पैदा नहीं होया तो बेटा इतने साइंस नाल बैठे हैं। मैं पैदा होने तो पहले दुनिया ते जायजा लैन आया कि हालात ठीक ने कि नहीं। ओए मेरे मालका, इन्हां नूं कोई तहकीक सुनाओ ते ओदा ओ हाल करदे ने जिवें बांदरां रजाई पाड़ी हुंदी। अच्छा साइंसदान साहब, इस गल उत्ते ते तहकीक करो कि मैं ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਨਹਾਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਤੇ नहीं? वैसे बेटे मैं माफी चाहना, ये सवाल जरा पेचीदा है, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश करना वा जी। बेटे मसला बारिश च ना आंदा नहीं और ना ही स्किन एलर्जी का तेरे नाल कोई ताल्लुक है। क्योंकि बेटा तू तो छप्पड़ च भी नहा लवें ते तेनू स्किन एलर्जी नहीं हो सकती। हाँ अलबत्ता उस छप्पड़ च जड़ियां मझां गावां नहा रही होणगियां उन्हां नूं एलर्जी हो सकती। लिहाजा बेटा तेनू बारिश के पानी नाल की होना है? दरअसल मसला तेरे दिमाग विच है, लेकिन मैनू अंदाजा है कि तू मन्ना नहीं, चूंकि दिमाग तेरा है नहीं। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਬਿਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੋਗੇ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੇਟਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ? ओ भाई उस्ताद जी ठीक कह रहे हैं, असल मसला दिमाग का ही है। हमने इस पे तहकीक की है। ਵਾਹ, ਪਤੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੰਜ ਚੱਕਰ ਲੈਣ ਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ। वही तो मुझे सीधे सीधे परवाना भी कह सकते हो। ਓਏ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਨੜੀ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੈਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਬਣਨ ਦੀ। ना बेटे ना लड़ो आपस में, मुझे पहले वो इंतहाई फैले हुए शख्स के सवाल का जवाब दे लेने दो। क्योंकि इस शख्स ने पहली बार खाने के अलावा किसी चीज पे तहकीक की फरमाइश की है। इसलिए बेटे जरा जवाब सुनो। वैसे तो बारिश में नहाने का फायदा ही होता है, इंसान खुश भी हो लेता है और बकौल चार्ली चपलन के अपने आंसू छुपा के रो भी लेता है। सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये चार्ली चपलन ने कहा है? वो तो सारी जिंदगी बोले ही नहीं। बेटी वो फिल्म च नहीं सी बोलता, फिल्म दे पैसे लेने ले बोलता सी। इस हवाले से एक गुमनाम शायर का शेर भी पेश करता हूं। इरशाद। बारिश में भीगते हुए रोने का फायदा, आंसू मेरे किसी को दिखाई नहीं दिए। वाह वाह। लेकिन क्योंकि बेटे तुम यकीनन अपने अकल के मुताबिक किसी आलूदा इलाके में रहते होगे, यानी कोई ऐसा इलाका जहां इंतहाई आलूदगी होती है, गली च घोड़ा भी बजा हुंदा है, रेड़ा भी खलोता हुंदा है और गोबर भी पिया हुंदा है, पर बतखां भी एक दूजे तो अगे लंघन की कोशिश कर रही होंदियां। नहीं चाचे मैं फेस 8 ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। अरे बेटे तू अपनी गली के बाहर फेस 8 लगा सकना है, ऐसी कोई गल नहीं। अच्छा असल मसला बारिश के पानी का नहीं होता, आलूदगी का होता है। इस बारे में एक तहकीकी वेबसाइट है हेल्थ शॉट्स जी। इस वेबसाइट ने एक रिसर्च की है जिसमें बालों के और जिल्द के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी शामिल थे। अच्छा, इन माहिरीन ने जो तजर्बात किए उनके मुताबिक आम तौर पर बारिश में नहाने से जिस्म को सुकून मिलता है और जिल्द और बालों पर इसका खुशगवार असर भी पड़ता है। वाह जी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बहुत ज्यादा आलूदगी है और माई थड़े ते बह के आलू भी छिलन रही है, ऐसे इलाकों में बेटे बारिश के पानी की तासीर मुख्तलिफ हो सकती है, जिससे आपके बालों को और जिल्द को नुकसान भी हो सकता है।
सही ठीक है गोगे बेटे तू फेस 8 च रहना है मगर तेरे वाल दसदे ने कि तेरा जिहड़ा फेस 8 है ਉਹਦੇ ਕੋਲ छप्पड़ जरूर है वे। ओ सर जी मेरे घर के पास तो आप शरें गिरती हैं। गोगे ये बात करके तुम मेरी नजरों से गिर गए। बेटा केड़ियां आबशारां डिगदियां ने मैं ते यही सुनिया जदों बारिश होवे तेरे बूहे अगे मोटरसाइकिल तो बंदे डिगदे ने। बहरहाल जिथे भी तू रहना अल्लाह तेनू खुश रखे। कहना मैं ये चाहता हूं कि ऐसे जो आलूदा इलाके हैं वहां जो बच्चे बारिश में नहाते हैं उनको चाहिए कि खारिश से बचने के लिए घर जाके गर्म पानी से जरूर नहा लें। वाह जी ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲੈਣ। आप ये क्यों पूछ रही हैं बेटा? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਗੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ 8 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤਾਰੀਕ ਹੈ। ये तहकीक भी सुन लो बेटा। जी तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं तुम्हारे साथ तो रोज होता होगा। आप लोगों में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कि आप जाके फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं अंदर झांकते हैं फिर दरवाजा बंद करके आ जाते हैं फिर थोड़ी देर बाद जाते हैं फिर दरवाजा खोलते हैं फ्रिज का फिर झांकते हैं फिर वापस आ जाते हैं? बड़ी बारी जनाब, बड़ी बारी। इसके पीछे एक वजह है बेटा। बार बार फ्रिज खोलने का ये मतलब नहीं कि भूख लगी हुई है बल्कि तहकीक ये बताती है कि खाने की चीजें खास तौर पर जिनमें चिकनाई चीनी या नमक ज्यादा हो जी दिमाग को एक सुकून और खुशी का एहसास देती है। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘੜੀ ਘੜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਕਿਉਂ ਖੋਲਣਾ। सर जी गोगा तो खाने पीने वाली चीजों तक ऐसे पहुंचता है जैसे चूंटियां चीनी के दाने तक। इस हवाले से भी साइंसदानों ने तहकीक की है कि चींटियां मीठी चीज तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाती है। साइंसदानों के मुताबिक चींटियों की कामयाबी का राज उनकी गैर मामूली सूंघने की सलाहियत और एंटीने जैसे सींग नुमा आज़ा में छुपा हुआ है। अच्छा आप जानते हैं कि चींटियां कॉलोनी बना के रहती हैं। अच्छा और हर चींटी कॉलोनी में मजदूर चींटियों का एक ग्रोह मुसलसल खुराक की तलाश में मसरूफ रहता है वाह और बड़ी तेजी के साथ इस खुराक तक पहुंच जाता है जिसकी खुशबू इंसानी नस्तनों से महसूस नहीं होती। चींटियां वो महसूस कर लेती हैं। अच्छा वाह। और इस तहकीक पे यकीन करने के लिए मैंने अपने असिस्टेंट को चींटियों की कॉलोनी में किराए का मकान लेने का कहा। ये उधर रिहाइश पजीर हुआ और चींटियों में घुल मिल गया। उसके बाद उनकी सारी नकलो हरकत नोट करने के बाद ये फैसला दिया कि तहकीक सच्ची है सर जी। ਸਰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਟੁਰੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਚੂੰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। अच्छा बेटा तुम्हारे मतलब के मुताबिक तुम्हें मैं एक साइंसी इजाद बता देता हूँ वाह जो नई नई हुई है। बर्तानिया के एक शहरी ने दुनिया का सबसे बड़ा लेसन और मटर उगाकर 2 आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। अरे अच्छा, वाह वाह जी वाह। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये लेसन एक आम लेसन से 35 गुना ज्यादा वजनी है और ये 4 फीफा फुटबॉल के वजन के बराबर है। अच्छा जी इसी तरह एक मटर का वजन 28 ग्राम है यानी 1 पाव मटरों में बामुश्किल 9 दाने आएंगे। मुझे यकीन है कि इसने सब्जियों पर तहकीक करके इतनी हैवी वेट सब्जी उगाने का फैसला इसीलिए किया होगा कि उससे इर्द गिर्द भी गोगे रहते होंगे। उसने सोचा होगा कि तहकीक और साइंसी तरीकाकार में इतनी जिद्दत तो जरूर आनी चाहिए कि कम से कम एक बंदे का पेट तो किसी तरह भर सके वाह वाह और खवातीन का भी दरीना मसला हल हो जाए कि लहसुन छीलने बैठो तो आधा घंटा लग जाता है। वाह 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 गोगे फौरन बर्तानिया शिफ्ट हो जाओ वहां हैवी वेट सब्जियां उगनी शुरू हो गई। और यार मैं ਤੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। ਸਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। बेटे हले तक किसी ने बनाया तो नहीं जे तू आर्डर दवे तो मैं सोटी तेरे सिर च मार के ते वड्डा आलू बना देना।
ਐਸਾ ਨਦੀਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹਾਂਡੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੱਸੀ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਖਾਲੀ ਦਾਦ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਾਮ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹਾਕੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੁਗਤ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਇਨਾਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਲਿਆਓ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਥੋਮ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ। ਬੇਟੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਤੇ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੱਸ, ਇਹਦੇ ਮਟਰ ਦੇ 4 ਦਾਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਝੁਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਿੰਡਾ 10 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨੋਟ 100 ਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ किराया तो बन गया ना जी। इतनी तादाद में गंजे वहां गए हैं, तुम क्यों नहीं गए? ਉਹ ਪਿਟਬੁਲ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲ ਜਾਵਾਂ। वैसे गोगे वाकई वहां तुम्हारी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस की गई। नायरीन, वो क्या कहते हैं कि रोमियो रोमियो कर दी नी मैं आपे रोमियो होई, रोमियो मैनू आखो सारे जूलियट ना आखे कोई। लो सारे करैक्टर ही पुठे करते। ओ भाई क्यों कल्चर मिक्स करी जा रहे हैं? रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई। हाँ जी यार खबर अब बरतानिया की है तो उथे रांझा किथे ले जावा। हीर रांझा दे बेचारे कदी इस्लामाबाद नहीं सन गए तो उन्होंने बगैर वीजे तो बरतानिया पहुंचा दिया। तो फिर तो रोमियो जूलियट भी बरतानिया के नहीं है? गौरी साहब, रोमियो जूलियट भी हीर रांझा ही है, वो बस पैदा बेचारे यूरोप में हुए थे। जी बिल्कुल। खबर सुने जरा, मशहूर गुलूकार और रैपर पिटबुल के कॉन्सर्ट में 22,000 गंजों की शिरकत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये कॉन्सर्ट लंदन के हाइड पार्क में मुनाकद हुआ, जिसमें पिटबुल के मदाहों ने गंजे नजर आने वाली टोपियां यानी बाल्ड कैप्स पहनकर शिरकत की। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 22,141 अफराद के एक साथ बाल्ड कैप्स पहनने का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। है इन्ने गंजे इको जगह पे? उथे कोई बिजली नहीं चमकी, बदल नहीं गरजिया? यार रोज तेरे नाल गंजा बैठा हुंदा, कदी बिजली चमकी? यार उन्हें ते अपनी टेंट कवर की हुई है। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यार हैरान कौन बात तो ये है कि 22,000 बंदा कॉन्सर्ट में आ गया है। मुजफ्फर साहब, असल में आपकी कमजोरी इतनी बढ़ चुकी है कि आपको 22,000 ज्यादा लग रहा है। ओ भाई जी, उथे तू बहुत ज्यादा बंदे आंदे ने, और जिस कॉन्सर्ट की मैं बात सुना रहा हूं इसमें 70,000 बंदे आए हैं। उनमें से 22,141 गंजे बने हुए थे, क्योंकि पिटबुल जो है वो भी गोगे जैसा ही है, और लोग ओदा स्टाइल कॉपी करने लई गंजे बनते ने। कई तो सच्ची मुच्ची टेंड करवा लेते हैं, और कई उसके जो फैन हैं वो बाल्ड कैप पहन के आ जाते हैं ताकि ऐसी भी गंजे लगी। मदाहों की इसी मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए ना जी, कॉन्सर्ट से पहले ही पिटबुल ने ये खास जहर की थी कि इस गेटअप को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। वाह। इसीलिए लोग इतनी ज्यादा तादाद में बाल्ड कैप पहन कर आए थे, ताकि भाई जी यही सारे गंजे लगिए। लिहो हुण जरा गिनती करके ते गिनीज बुक के गोगे इतनी तादाद में गंजे वहां गए हैं, तुम क्यों नहीं गए? ਉਹ ਪਿਟਬੁਲ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲ ਜਾਵਾਂ। वैसे गोगे वाकई वहां तुम्हारी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस की गई, और ये वह जगह थी जहां तुम सर उठा के, बल्कि असली सर के साथ फख्र से जा सकते थे, और वहां जाके खड़े होकर तुम कह सकते थे, हम हैं गंजे के दुनिया जान ले। तारीख में गंज की अहमियत तो हमेशा ही रही है, लेकिन गंजेपन से इतनी मोहब्बत शायद ही कभी देखने को मिली। वो तो कॉन्सर्ट कम लग रहा था, गंजों का आलमी मेला ज्यादा लग रहा था। गिनीज बुक वाले भी सोच रहे होंगे ये रिकॉर्ड पिटबुल ने बनाया या हजामों की यूनियन ने बनाया।
और इस कॉन्सर्ट को देख के हजाम बेचारे अलहदा परेशान होंगे कि अगर ये हेयर स्टाइल चल गया तो सानू तो फिर हुणे ही फ्रूट वाली रेहड़ियां ला लेनी चाहिए। अजीजी इतने गंजे वहां इकट्ठे हुए थे, वहां शरारती बच्चे तरकोने नहीं लेके गए? देखो ना ये हमारी क्या सकाफत है, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੰਜਾ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਤਰਕੋਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚ ਤਰਕੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਮੜੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈਂਦਾ। अच्छा, इस कॉन्सर्ट में 2 तरह के गंजे शामिल हुए हैं जैसे मैंने बताया, एक तो असली वाले नेचुरल गंजे जी और दूसरे जिन्होंने गंजपन वाली टोपियां पहनी हुई थी। हाँ जी। और ये पहला मौका होगा जहां असली गंजों का चेजा लगने की बजाय गंजियों ने टोपियों वालों का चेजा लगाया होगा कि आज तुम असली गंजे होते तो तुम्हें टोपियां तो लाना पहननी पड़ती, तुम लोग तो इतना खर्चा करके पिटबुल हुए हो, देखो हम मुफ्त में पिटबुल बन के आ गए। वाह वाह। और मेरा ख्याल है कि इस कॉन्सर्ट के बाद ये जो हेयर प्लांट शुरू हुआ है ना, हाँ जी हाँ जी वो कट जाएगा ओह, क्योंकि गंजिया ने कहना छो पर वाल लुआन की लोड़ है, जेड़ा वेखेगा उन्हें कह देंगे भाई जी मैं पिटबुल का फैन हूं, मेरे सिर पे मुकम्मल वाल हैं, मैंने पिटबुल की मोहब्बत में टेंड कराई हुई। और लड़कियां इन गंजों से नफरत करने की बजाय कहेंगी ओ माय गॉड पिटबुल। वैसे शो वेख के लगता ही नहीं म्यूजिकल शो है, लगता मिट्टी दी हांडियां दी मार्केट है। गौरी साहब, मशहूर शख्सियात से मोहब्बत के इजहार के लिए बहुत से लोग इन जैसा रूप धारते हैं। हाँ जी। जैसे 2017 में 662 अफराद ने चार्ली चपलन का हुलिया बनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। वाह। सिर्फ 662 अफराद, ये कौन सा रिकॉर्ड हुआ? और भाई जी चार्ली चपलन का गेटअप करना कोई आसान काम नहीं है, टिंड ते बंदा इथों उस तरह फेरे ते इथे जाके मुका देवे। चार्ली चपलन का पूरा गेटअप किया था उन्होंने, 662 लोगों ने। वाह। इन 22,000 गंजों की तरह को टोपी पहन कर नहीं थे आ गए, हाँ। बल्कि इनकी शक्ल, उनकी मूछ, उनके हैट, उनके लिबास, हाथ में छड़ी, उनकी चाल बिल्कुल चार्ली चपलन जैसी थी। अच्छा वाह। इससे जरा अंदाजा लगाओ ना थैला साहब कि 662 चार्ली चपलन चलते हुए नजर आ रहे हाँ हो। जी। गंजा ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੀ बैठा है। ये 662 अफराद चार्ली चपलन का गेटअप करके स्विट्जरलैंड में चार्ली चपलन की रिहायशगाह के बाहर इकट्ठे हुए थे, अच्छा। जहां पे अब चैपलन्स म्यूजियम बन चुका है। अरे वाह। इस रिकॉर्ड की अहमियत यहां से समझ लो कि ये पिछले साल भी ये रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई थी। 1000 के करीब लोग इकट्ठे हुए थे, अच्छा। लेकिन उनमें से सिर्फ 429 अफराद ही चार्ली चपलन बने हुए थे। हाय। बाकी अपनी तरफ से बने तो चार्ली चपलन थे, हाँ। मगर वो बेचारे लग रहे थे चार्ली पपलन। कोई उनमें से अचार्ली लग रहे थे, कोई उनमें से चार्ली गपलन लग रहे थे, और कई तो बेचारे बिल्कुल ही चार्ली डबलन लग रहे थे। मैं तो ये सोचता हूं कि शुक्र है गोगा को इतना बड़ा आदमी नहीं बन सका, अच्छा। वरना अगर इसके फैन 100 भी इकट्ठे हो जाते इसका हुलिया बना के लाहौर में, तो लाहौर में तो खुराक का कहत पड़ जाना था। नहीं वैसे हो सकते हैं 500-600 गोगे इकट्ठे, अगर हम लंगर वाली लाइनों में देखें तो। अच्छा, ये जो फैनशिप है ना इस तरह की जुनूनी, ये सिर्फ आर्टिस्टों तक महदूद नहीं है। हाँ जी। आइंस्टाइन के जो फैन है ना जी, उसके चाहने वाले जी जी। 885 अफराद ने 2024 में आइंस्टाइन का हुलिया अपनाकर उससे मोहब्बत का इजहार किया। अरे वाह। ये अलग बात है कि उनके दिमाग रत्ती भर भी आइंस्टाइन जैसे नहीं थे। इसी तरह 2018 में 4772 अफराद ने भारत में गांधी का रूप धार कर एक तकरीब में शिरकत की थी। अच्छा। अजीजी साहब इन्हें बंदे ने डांगा कितों लईयां होणगियां? देखो ना ये रहा, उन्होंने सिर्फ उस चीज की फिक्र है जेड़ी ये कोलों चुकी नहीं जाती। यार तुम ये सोचो कि इन्नियां बंदियां ने धोतियां कितों लभियां होणगियां। अच्छा फिर देखें, आप हैरान होंगे सुन के, मशहूर अदाकार मार्लन मिनरो की मोहब्बत में कैलिफोर्निया के अंदर जी। 1037 खवातीन मार्लन मिनरो का रूप धार कर उसे खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठी हुई। वाह जी वाह। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात,
ये तो सब हकीकी किरदार थे ना। जी बहुत से फिक्शनल के करैक्टर भी हैं जो लोगों के साथ यूं जुड़ जाते हैं कि लोग उन जैसे दिखना चाहते हैं। जैसे मलेशिया के अंदर 2023 में 685 अफराद ने स्पाइडरमैन का रूप धार कर एक मुनफरद रिकॉर्ड कायम किया था। अच्छा वाह इतने स्पाइडरमैन देखकर असली मकड़ियों के अंदर अपने मुस्तकबिल के हवाले से तशवीश पैदा हो गई थी। मैं तो ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸੁੱਕੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ 3 नहीं ਲੱਭਣੇ। लो और भाई जी सबसे आसान अगर फैंस का जुलूस निकले ना या इकट्ठा हो तो वो मुजफ्फर का हो सकता है। अच्छा ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੀਨੀ ਰੋੜੋ तो किन्ने मुजफ्फर इकट्ठे हो जाएंगे। मुजफ्फर उनके पास खड़ा होके कह सकता है ये सारी मेरी फैनशिप है। ते ਅੱਜ ਤੇ माशाल्लाह सूट भी मुजफ्फर ने कीड़ी दे रंग दा पाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कक्की कीड़ी वाला। बड़ा मैं मजा लेता हूं कि देखो गोरा जो है वो अपने हीरोज के साथ कितना प्यार करता है। बड़ी बात है। और हमारे यहाँ क्या होता है अपने हीरोज के साथ अब सब जानते हैं। अच्छा इस हवाले से हमारे नामवर अदाकार अलबेला साहब मरहूम ने बड़ी एक प्यारी आइटम बनाई हुई थी। वो कहते थे कि अगर अमेरिका में किसी को पता चल जाए कि ये जो सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है ये हमारे फलां फिल्मी हीरो की है तो अवाम मोहब्बत में उस सफेद गाड़ी को चूम चूम के सुर्ख कर दे। और अगर यहाँ हमारे पाकिस्तान में अवाम को पता चल जाए कि ये जो सुर्ख गाड़ी है ये हमारे फलां फिल्मी हीरो की है तो अवाम मोहब्बत में उस सुर्ख गाड़ी को खुर्च खुर्च के सफेद कर दे। तो गेर के बंदे थे आ जाए। अच्छा गोगा हस रहा हो तो ढिड एवं नाल फड़ लेंगे। बंदा पूछे यार तू विग साम ढिड ते उत्थे ही लगा रहना। यार देखें आप कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो 15-20 साल पहले हम लोगों ने इंग्लिश फिल्म में देखी तो उस वक्त हम कहते थे कि लो दसो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। कई ऐसी चीजें हैं जो अब वाकई असल में भी आ चुकी हैं। जैसे ये कुछ दिन पहले मैं एक बड़ी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का एक क्लिप देख रहा था। जी उसमें एक साइंसदान हीरो और हीरोइन से पूछ रहा था कि मैं अगर तुम लोगों के लिए एक ऐसी चीज बना दूं जिसके जरिए तुम दूर बैठे भी आपस में बात कर सकते हो बल्कि एक दूसरे को देख भी सकते हो वो भी बगैर एक दूसरे से मिले दूर बैठे तो कैसा रहेगा। तो हीरो ने जवाब दिया कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। तो साइंसदान उन्हें कहता है कि एक स्मार्टफोन की मदद से। हीरोइन उससे कहती है कि बिल्कुल नहीं हम ऐसी चीज की ख्वाहिश क्यों करेंगे जो हमारा मिलना जुलना रोक दे। हमें नहीं चाहिए ऐसा स्मार्टफोन। लेकिन उस हीरो और हीरोइन के ना चाहने के बावजूद आज स्मार्टफोन सबसे अहम जरूरत बन चुका है। अब देखे ना जरा बिल्कुल सर कि ये फिल्म में बात हुई थी कई साल पहले और उस पे कोई यकीन नहीं कर रहा था बल्कि सीन में भी सुनने वाले यकीन नहीं कर रहे थे। अब सचमुच में आपके पास ऐसा फोन है कि आप अमेरिका बैठे हुए भी एक दूसरे को देख के बात कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक जमाना था कि जब लोग साइंस फिक्शन फिल्में देखकर हंसते थे कि भाई ये काम या ये चीज तो सिर्फ फिल्मों में ही हो सकती है ना। लेकिन वक्त ने साबित किया कि फिल्मों के मुसन्नफ और हदायतकार बाज़ औक़ात साइंसदानों से भी ज्यादा दूर की सोच रखते हैं। बिल्कुल मेरे जहन में इसकी एक दिलचस्प पाकिस्तानी मिसाल आ रही थी जी कि उमर शरीफ मरहूम उनका एक स्टेज ड्रामा था बकरा किस्तों पर। जब ये ड्रामा बना तो लोग सिर्फ उसका नाम सुनकर ही हंस पड़े थे कि लो जी भला बकरे भी कभी किस्तों पर मिलते हैं। उस वक्त शायद किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन कारोबार बन जाएगा कि बकरा भी किस्तों पे मिलेगा। पाकिस्तान में दर्जनों फार्म पूरा साल माहाना किस्तें वसूल करके ईद उल जुहा पे आपको कुर्बानी का जानवर घर पहुंचा रहे हैं। यानी जो चीज कल तक मजा थी आज कामयाब बिजनेस मॉडल है। बिल्कुल सही इसी तरह मशहूर सिलसिलावार जो कहानी थी इमरान सीरीज
जी वो जब पढ़ा करते थे तो उसमें भी कई ऐसी चीजें थी कि बंदा सोचता था कि यार है की फजूल गल लिही। उसमें मुझे याद है एक जगह पे था लिखा हुआ कि हीरो ने या विलन ने किसी के दिमाग को चिप लगाकर उसकी सारी बातें सुन ली हैं। तो हंस हंस के दूर हो जाते थे कि यार ये किसी के ज़हन में कैसे पता चल सकता है कि बंदा क्या सोच रहा है, कैसी फजूल बात है। बिल्कुल। लेकिन आप देखें कि मशहूर बरतानवी तबीयत दान स्टीफन हॉकिंग जो पैरालाइज हो गए थे, जी आपको पता ही होगा सबको कि बहुत बड़ा तबीयत का माहिर हुआ है, बिल्कुल। और वो बेचारे बिल्कुल हरकत नहीं कर सकते थे, जी ना बोल सकते थे ना लिख सकते थे। उन्होंने जिस तरीके से अपने नजरियात लिखकर दुनिया को समझाए, उसके बाद लगता है कि इब्ने सफी और मदर कलीम बिल गेट से भी ज्यादा विजनरी इंसान थे। क्योंकि स्टीफन हॉकिंग भी एक खास कंप्यूटर पर अपने गाल के पट्टों की हरकत से लिखते और बात करते थे। उनके चश्मे पर एक इंफ्रारेड सेंसर लगा था जो पट्टों की मामूली सी हरकत को भी महसूस करता था। तो वो जो भी कुछ सोचते थे ना जी, वो सामने कंप्यूटर पे लिखा हुआ आ जाता था। आप देखें कि किस तरह उनका इल्म जो है वो उनके अंदर से निकाला गया है। अगर ये चिप ना लगती उनको तो उनका जो सारा विजन था तबीयत के हवाले से, जो जितनी भी उनकी सोचें थी वो उनके साथ ही चली जाती। इसी तरह हॉलीवुड ने और बहुत सी ऐसी फिल्में बनाई हैं जिससे उस वक्त लोग हैरान होते थे, लेकिन आज हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। 1968 में एक फिल्म आई थी स्पेस ओडेसी 2001। इस फिल्म में खला की सैर और वीडियो कॉल दो ऐसी चीजें थी जिन्हें देखकर या उनके बारे में सुनकर लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था जी, और हैरान भी हुए थे कि ये कैसे हो सकता है। उस फिल्म में खला का सफर, मसनूई जहानत, फ्लैट स्क्रीन कंप्यूटर, फिर टैबलेट नुमा डिवाइसेस और वीडियो कॉलिंग दिखाई गई थी। और उस वक्त लोग उसे महज एक तखय्युल समझते थे। लेकिन आज आप देखें आईपैड, एंड्रॉइड टैबलेट, जूम, गूगल और व्हाट्सएप वीडियो कॉल हर घर में मौजूद है। बिल्कुल। फिर एक फिल्म आई थी बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2। ये 1989 में आई। स्मार्ट ग्लासेस यानी कैमरे वाले डिजिटल चश्मे, खुदकार घरेलू निजाम और आवाज से चलने वाली मशीनें दिखाई गई थी उसमें। उस वक्त भी लोग उसे साइंस की इजाजत से ज्यादा कॉमेडी फिल्म समझते रहे। बिल्कुल सर। कैसे कैसे हो सकता है इस तरह हंसते थे लोग सैनमे में बैठे। ये तो मैं बता रहा हूँ कि जो अय्यी टाइप सोफिस्टिकेटेड लोग थे, गोगेर के बंदे थे, अच्छा गोगा हस रहा मैं टेढ़े में नाल फाड़ लेंगे। बंदा पूछे यार तू विग साम टेढ़ दे उथे ही लगा रहना। अच्छा मैं बता ये रहा था कि वो बैक टू द फ्यूचर फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया था, आज वो हर चीज असली हालत में आपके हाथों में, आपके सामने है। हाँ जी सर, बिल्कुल। यार गाड़ी बगैर ड्राइवर के एक फिल्म में चलती थी, खुद ही गाड़ी चल रही है, तो उस पे भी बड़ा हंसे सारे और बड़ा दिलचस्पी से सबने देखा कि यार गाड़ी बगैर ड्राइवर के चल रही है। होए 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 उस फिल्म में कमाल दिखाया उन्होंने। आज ऐसी गाड़ियां आम होती जा रही हैं जो बगैर ड्राइवर के भजी फिरती हैं। बिल्कुल सर। ये जीजी मैंने भी देखा सीन, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने अचानक एक फिल्म लगी थी इंग्लिश, तो उसमें क्या दिखाया कि समंदर का पानी बाहर आया तो 3-4 मंजिलों तक ना वो पानी गया है। अच्छा, तो मैंने कहा ये क्या गोरे झूठ भी बना देते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना पानी कैसे आ सकता है। फिर वो जब सुनामी आया तो हकीकत में मैंने देखा वो। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।